We need to start today with the chapter differentiation. Now I hope everybody could remember the chapter of limit. Okay, what we were doing in the chapter of limit, we were given with a function and then we were given with the value of x. But if we put that value of x in that function, it was indeterminate. So we didn't put the value of x, but then हमने x के नियर बाई वैल्यूज हमने उसमें डाल के वो फंक्शन हमने सॉल्व किया. Now differentiation chapter, what does it says? It again says कि will be given with some function. Now the function is x square minus 4 upon x minus 2. Again will be given with some function. And we would be given with some value of x. मान लो if are given with the value of 2 तो function कैसा हो जाएगा? Indeterminate. So they are saying don't take value 2. Again you take nearby values of 2. But in differentiation what they are saying कि instead of taking 2, if you are taking 2.1 तो ये function में क्या change आएगा? If you are taking the value 1.9 तो ये function में क्या change आएगा? With every increase in the value of x or with every decrease in the value of x, this function का आंसर change होता जाएगा. और वो कौन से रेशियो में चेंज होगा वो अगर मुझे जानना है तो that is nothing but it is differentiation. कि my function at any given value of x, if I am getting any answer, so if I change the value of x, either we increase the value of x or we decrease the value of x, then what will be the change in the function? That change अगर ढूंढना चाहते हैं तो वो change हमें बताएगा कौन? Differentiation. Are you getting it? अब ये जो change आया मतलब वो change को हम denote करते हैं by delta y, and because of the change in the value of x there is change in the value of y. तो ये जो delta y upon delta x हम जो बोलते हैं बेटा 1 mark very important theory. It is said to be our incrementary ratio. क्या कहते हैं उसको हम? This is our incrementary ratio. और ये जो डेल्टा y है अपॉन डेल्टा x है उसको हम इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं d of y अपॉन d of x. But are you getting what exactly the differentiation is? Now whatever I explained, let's read it from the textbook. Page 168 पर चले जाओ. Page 168 पर चले जाओ. There is some introduction given. बेटा है? There is some introduction given. बेटा मिला? Bhakti, start reading that introduction. We have studied about functions in standard 11. Let function of x be a function of x. Differentiation is a technique. Underline करो. Differentiation is a technique which is used for analyzing the way in which function f of x changes and the function will change, and how much does it change with the change in the value of x. मतलब my fx, this answer will change, और वो कितना change होगा वो मुझे differentiation ही बताएगा. आगे that is we can know how rapidly a function is changing at any point using differentiation. Okay. In real life we have functions. Underline करो. In real life we have functions like production cost, revenue, profit, etc. अब इस पर हमको sums भी देखने हैं. Not in real life. In the textbook also we have to see the sums on this. अब देखो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज जो चला रहे हैं या तो जिनका बहुत बड़ा बिजनेस है उन्होंने क्या करा है? उन्होंने मैथमेटिकल हेल्प लेके एक फंक्शन बना दिया है. से कॉस्ट का एक फॉर्मूला बना दिया, देन सेल्स का एक फॉर्मूला बना दिया है. बिग कंपनीज दे मेक अ फॉर्मूला कि भाई मेरा सेल्स अगर है तो इट इज x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x. कैसे बनाया दैट आई डोंट नो, बट दे मेक वन फंक्शन, दे मेक अ फॉर्मूला. फिर कितने भी यूनिट्स अगर हमें सेल करने हैं तो वो x में हम वो वैल्यू डालते जाएंगे तो हमें पता चलेगा कितना रेवेन्यू आने वाला है.
सो बड़ी बड़ी कंपनीज क्या करती है, ऐसे ये डिफरेंशिएशन को यूज करती है. दे ऑलरेडी मेक वन फंक्शन. उनके पास इतने सारे रिसर्च करने वाले लोग हैं कि जो एक फॉर्मूला बना देते हैं कि भाई दिस इज आवर स्टैंडर्ड फॉर्मूला. फिर ऐसा बोलेंगे अगर तुम 100 यूनिट्स बेचोगे तो इतना रेवेन्यू आएगा, तुम अगर 500 यूनिट बेचोगे तो इतना तुम्हारा रेवेन्यू आएगा. वो बता पाते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन कि 100 यूनिट दैट इज माय एक्स एंड नाउ इट इज 500 यूनिट्स. तो चेंज हुए यूनिट्स तो तुम्हारा रेवेन्यू कितना होगा वो भी तुम्हें वो बता देंगे. आगे कंसीडर y is equals to f of x is equals to 2x square plus 3, a function of x. If the value of independent variable x is changed, there will be a corresponding change in the dependent variable y. कॉमन सेंस, अगर x चेंज होगा तो there will be corresponding change in the dependent variable also. आगे If the value of x is 2, then the value of dependent variable y will be 11. okay. Now we shall find the increase in y for a small increase in x. मतलब देखो मैंने देखो नीचे जरा टेबल देखो 2.1 था x, उसको चेंज करके देखो पहले 2 था उसको चेंज करके 2.1 किया तो कितना x मेरा चेंज हुआ 0.1. सो मेरा आंसर 11 से कितना हो गया 11.82. तो y में कितना चेंज आया 0.82. और वो जो टेबल है उसके ऊपर देखो लिखा हुआ है द रेशियो ऑफ डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज टर्म्ड एज व्हाट इंक्रीमेंटरी रेशियो. मतलब x की वैल्यू देखो 2 से 2.1 करी तो y की वैल्यू 11 से 11.2 हो गया 11.82. और फिर हम इसका रेशियो बिठा रहे हैं तो आंसर कितना आ रहा है इट इज 8.2. इतना फर्क पड़ जा रहा है बाय चेंज इन द वैल्यू ऑफ x. बड़ा कंसेप्ट जा रहा है दिमाग में कि x की वैल्यू चेंज करी तो y की वैल्यू में चेंज आया एंड दैट चेंज इज इन द रेशियो ऑफ 8.2. डू यू सी दैट टेबल इट्स 8.2. तो इस तरह से उन्होंने वो सारे चेंजेस वहां पर उन्होंने वो दिखाए हैं. एंड फिर देखो नीचे के लाइन में ऐसा भी लिखा है hence in this example delta y tends to 0 delta x tends to 0 but then delta y upon delta x tends to a finite value not necessarily a 0. Thus the limit of delta y upon delta x is represented by d of y upon d of x and it is called what derivative of y with respect to x. It's a derivative. बाजूना पेज पर आई जाओ पेज 169 वहां पर कुछ डेफिनेशन दिया हुआ है. देखो डेरिवेटिव का और डिफरेंशिएशन का कुछ डेफिनेशन दिया हुआ है. सो बेटा डेफिनेशन वाच Definition. Let f a tends to r and a belongs to a where a is an open interval of r. If limit h tends to 0. लिमिट क्या लिखा है लिमिट h tends to 0 f of a plus h minus f of a divided by h divide by h is a then this limit of a function f is called derivative. Underline करो this limit of a function will be called as what derivative and it is also denoted by what. देखो इसको इस तरह से dy upon dx करके भी डिनोट कर सकते हैं या तो f dash a ऐसे भी हम उसको डिनोट करते हैं. मतलब ये डेफिनेशन बोलना क्या चाह रही है जरा समझो. ये डेफिनेशन बोलना क्या चाह रही है पहले जब x का वैल्यू 2 होता था तब ये मेरे को फंक्शन a मेरे को उसका आंसर मिलता था. लेकिन जैसे ही मैंने 2 की वैल्यू चेंज करी तो मेरा आंसर f प्लस क्या आ गया h. विद द चेंज इन द वैल्यू देखो ये मेरा फंक्शन भी चेंज हो गया. और फिर जब उसका मेरे को रेशियो ढूंढना है dy अपॉन dx तो ये फॉर्मूला लगा के हम रेशियो ढूंढेंगे. और इस फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट लिमिट h टेंड्स टू क्या है लिमिट h टेंड्स टू क्या है इसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है. समझ रहे हो व्हाट इज द फॉर्मूला डेफिनेशन. What is the formula f a plus x minus f of a upon h. अब a के बदले x का भी एक फॉर्मूला दिया देखो वो डेरिवेटिव का डेफिनेशन पढ़ा उसके नीचे देखो क्या लिखा है द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग द डेरिवेटिव इज कॉल्ड एज व्हाट द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग द डेरिवेटिव इज कॉल्ड व्हाट डिफरेंशिएशन.
एंड एफ डैश एक्स जरा चेक करो, एफ डैश एक्स उसका भी अंडरलाइन करो। एफ डैश एक्स का फॉर्मूला क्या दिया है बेटा? व्हाट इज एफ डैश एक्स गिवन? एफ ऑफ x प्लस एच माइनस और डिवाइड बाय h, जबकि लिमिट h टेंड्स टू क्या है? सो बेटा फॉर्मूला इफ आई राइट द फॉर्मूला लिमिट h टेंड्स टू 0, f क्या है? x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइड बाय व्हाट? h। यहां से इस तरह से अपना फॉर्मूला बैठेगा और ये फॉर्मूला पर अभी हम सम स्टार्ट कर रहे हैं। चलो फॉर्मूला पर हम अभी सम स्टार्ट कर रहे हैं। पेज 173 पर आ जाओ। पेज 173 पर आ जाओ। थियरी जितनी समझ में आई ठीक है, नहीं है तो जाने दो। सम नंबर 1 जरा देखो। चलो सम नंबर 1 बेटा, सम नंबर 1 फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट? 2x प्लस 3। फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अब अपने को इसका क्या फाइंड आउट करना है? डेरिवेटिव। एंड ऊपर जरा हेडिंग पढ़ो, सम में एक्सरसाइज 5.1 ऊपर हेडिंग पढ़ो, क्या बोल रहे हैं? फाइंड आउट द डेरिवेटिव यूजिंग definition method. We have to find out the derivative using definition method. So beta, all attention on the board, all attention on the board. अगर मुझे f dash x ढूंढना है तो उसका फॉर्मूला क्या लगेगा? लिमिट h टेंड्स टू 0, f x plus h minus f of x upon h. Now what is my f of x given to us? 2x plus 3. Now recently we completed the chapter of limit. Recently, can I say this function में पहले हम ये दो को सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर आएगा फिर वो यहाँ रख के हम आगे सम कंटिन्यू करेंगे। Last lecture limit we did the same thing. Here also we start with that only. Now here it is f of x and this is f of x, तो वो तो सीधा का सीधा यहाँ आ जाएगा। Yes. Now what is f x plus h? How do we get that? 2x plus h plus 3. Now let's open the bracket. 2x plus 2h plus 3. So if I open the bracket and now I put the value 2x plus 2h plus 3 minus 2x plus 3 upon h. Now let's open the bracket. 2x plus 2h plus 3 minus 2x minus 3 upon h. तो बेटा कुछ कटेगा, ये और ये कट, ये और ये कट। So 2h upon h, h कट। So मेरा आंसर क्या आएगा? सॉल्व हो गया, कर लो। सॉल्व हो गया, कर लो। बेटा प्लीज वातो नहीं, प्लीज वातो नहीं। 5.1 पूरा कंप्लीट करना है आज, जरा जल्दी। ज्यादा सम है नहीं और एकदम इजी है। 3-4 सम तो तुम मेरे हेल्प के बगैर भी कर लोगे ना। होए
बेटा हो गया? बेटा मास्किंग हो गया? बहुत बढ़िया बेटा. See the second sum, come on all of you. The formula I am not rubbing it off. What's the second sum? जरा check करो. But what does it say? Is the second sum limit? Sorry, function of x क्या दिया है अपने को? x क्या है? Okay, it is x squared. Now. बेटा f dash x का फॉर्मूला क्या लगेगा? Limit h tends to 0 f x plus h minus f of x divide by h. एंड मेरे को फंक्शन ऑफ x क्या दिया हुआ है? x स्क्वायर. सो अगेन बेटा व्हाट वी आर सपोज टू डू इज कि इसको और इसको पहले हम सॉल्व करेंगे और फिर जो भी आंसर आएगा विल सब्स्टिट्यूट ओवर हियर एंड देन विल कैरी फॉरवर्ड द थिंग्स. नाउ f of x is x square, so that I'll directly put it over here, no need to change. But what will be f x plus h का क्या आंसर आएगा? x plus h the whole square. Now let's put this value x plus h the whole square minus x square divide by h. अरे हाँ के ना. अब बेटा रिसेंटली हमने कुछ लिमिट में ऐसे सम सॉल्व करना सीखे थे. क्या करेंगे? या वेरी गुड. अज्यूम करो x plus h is equal to t. ऐसा हमें अज्यूम करना है. therefore h is equal to t minus x. अब बेटा ये जो सापोलिए निकल रहे हैं जरा ध्यान दो. ये वाला इधर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, ये h को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो मेरा आंसर क्या निकलेगा? टी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टी माइनस एक्स. और जब ऐसे है तो ये कौन से फॉर्म में आ गया? n minus 1. So 2x will be my answer. What would be my answer? 2x. But do you remember this assumption ki forgot? But just recent chapter done just last day. बेटा इसी के जैसा है सम नंबर 3. खुद से करो, नो हेल्प बेटा, नो हेल्प. उसके बाद 3 के बाद नहीं, 5th के लिए तुम्हें हिंट देनी पड़ेगी, तुम गधे हो. मैं 5th की भी हिंट दूंगा. 3rd वाला करो चलो. Beta, after this with some, are you trying 3rd one? अच्छा, how many of you got the answer 3rd one? ओहो, इतने सारे जन का आ गया. बोर्ड पर से देख के कराना. कैसे नहीं यार, ये देखो ये x स्क्वायर था तो आंसर आया 2x. उधर क्या था? x raised to, तो मेरा आंसर आया
7 x raised to 6. कितनों का आ गया 7x raised to 6? Oh, many of you could get it. Now fifth वाला, will you try after giving my hint? You don't want the hint. Don't want it? बड़ा क्यों होशियार समझ रहे हो अपने आप को यार? एक सम हो जाने का मतलब ये नहीं कि बेटा it is 3 root x. 1 by 3. Yeah, that's the hint what I wanted to give you. That is 1 by. So write it this way. 3 root x is nothing but x raised to 1 by 3. And now try to solve the sum. वापस तुमको ये na वाला आइडेंटिटी मिल जाएगा. बेटा सम सॉल्व करने का ट्राई करो, वापस तुमको ये na वाला आइडेंटिटी मिल जाएगा. बेटा मुझे क्या लग रहा है, एक स्टेज पर ये वाला सम मेरे को सॉल्व करना पड़ेगा. तुम कहीं ना कहीं तो अटकोगे. हम अटक रहे हैं सर, हम अटक रहे हैं. अच्छा कितनों का इतना आंसर आ गया? t raised to 1 by 3 minus x raised to 1 by 3 upon t minus x. इतना कितने लोगों ने कर लिया? इसके बाद anybody has tried? Rao, what's the final answer? 1 by 3x 2 by 3. 1 by 3x मतलब x 3 के बाजू में कि ऊपर मल्टीप्लिकेशन में? 3 के बाजू में. बहुत बढ़िया, that's the answer. कैसे 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 बेटा? this is in the identity na n minus 1. तो what's my n? 1 by 3. what's my a? अरे 1 by 3 minus 1. so it will be 1 by 3 x raised to minus 2 by 3. ऐसा आ रहा है देखो तो. 1 by 3 minus 1 is minus 2 by 3. और कल ही सिखाया ये अगर माइनस में तो माइनस साइन हटा नहीं है मेरे को, अपने को नहीं चाहिए माइनस. सो वी टेक इट इनटू डिवीजन. तो इस तरह से अपना आंसर आएगा. वी टेक इट इनटू डिवीजन व्हेन इट इज इन द मल्टीप्लिकेशन. ऑलराइट, कितनों ने ऐसा लिखा है आंसर? बढ़िया बढ़िया. इधर बेटा इंडिया वाले T20 आज हारेंगे. हाथ ऊपर ही नहीं किया इन लोगों ने. Now, fourth वाला, let's do it together. Fourth. Then will you do the sixth one after doing the sum fourth, which is as same to same? Now fourth. Function of x is 1 upon x plus क्या दिया है? 1. Now my f dash x का आंसर क्या आएगा? लिमिट h tends to 0, लिमिट h tends to 0 f x plus h minus f of x upon क्या है? h. जबकि अपना f of x क्या दिया है? 1 upon x plus 1. So if f of x is 1 upon x plus 1, so will I substitute over here? No problem. But what is f x plus h? 1 upon x plus h plus 1. ऐसा आएगा. बेटा छोड़ दो, मैं कर रहा हूं, तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? छोड़ दो, पहले समझ लो, उसके बाद नेक्स्ट सिक्स्थ वाला तुमको फुल ट्राई करने को मिलेगा. क्यों टेंशन ले रहे हो? ये पहले समझ लो. So f x plus h is this. Have you understood that? I'll put it over here. f x plus h plus 1 minus
x plus 1 the whole divide by h. बेटा रेज योर हैंड. इसको आगे कैसे सॉल्व करूं? कॉमन निकलेगा. बुराउद्दीन एलसीएम करना पड़ेगा. कॉमन कैसे निकलेगा? We have to do what? अब देखो एलसीएम में अपने को पता है अपना कितना जबरदस्त लेवल पर है वो. सो नॉट टू वरी. 1 2 3 डू इट दैट वे. अपना बेटा 3 एरो थियरी, उसी से हम काम करेंगे. तो दिस विल बिकम, कैन आई से x plus 1, दिस इज x plus h plus 1 the whole divide by x plus h plus 1, x plus 1 and this whole divide by h. बेटा this divide by this and this whole divide by, तो ये नीचे आ जाएगा. क्या नीचे आ रहा है? बेटा इधर एलसीएम लिया ना हमने, and then the whole is divided by h, तो ये डिवीजन हम नीचे h के साथ ले जाएंगे. चले. सो बेटा कैसा अभी आंसर निकलेगा जरा देखो तो. x plus 1 minus x plus h plus 1 upon h, x plus h plus 1 અને x plus 1. सही. ये कैसे आ रहा है? मैं इसको नीचे ले लिया ना. चले आगे. अब जरा हेल्प करो. क्या करूं आगे? जरा हेल्प करो. क्या से ओपन द ब्रैकेट. सो x plus 1 minus x minus h minus 1 upon h, x plus h plus 1 and x plus 1. So can I say x cut plus 1 minus 1 कट. बचा क्या बेटा? बचा क्या? माइनस h अपॉन h, x प्लस h प्लस 1 ने x प्लस 1. तो ये h भी कट हो जा रहा है. चेक करो. सो दैट्स माइनस 1 अपॉन x प्लस h प्लस 1 एंड x प्लस 1. बेटा इधर से जरा इधर 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 नजर मारो. लिमिट h टेंड्स टू क्या है? लिमिट h टेंड्स टू क्या है? मेरे फॉर्मूला में सबसे पहले लिख दिया मैंने. लिमिट h टेंड्स टू व्हाट? सो कैन आई से यहां पर द वैल्यू ऑफ h आई कैन पुट 0. सो 1 अपॉन x प्लस 0 प्लस 1 एंड इट इज x प्लस. सो माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, x प्लस 1. बेटा तो x plus 1 into x plus 1 is what? Common sense. Very good. x plus 1 the whole square. बेटा 3 स्टेज में सम करें. कौन सा स्टेज ना पता चला हो पूछ लो. अरे बेटा कौन सा स्टेज नहीं पता चला पूछ लो. सर एक भी स्टेज नहीं. हाँ देव क्या तकलीफ बेटा? क्या तकलीफ? अच्छा ठीक नहीं रहे. समझ में आ गया. बहुत बढ़िया. बेटा the arrow part, are you getting it? The LCM, how we took it? And after that we just expanded the values and ultimately our answer was minus 1 upon x plus 1 the whole square. Our answer was minus 1 upon x plus 1 the whole square.
But do you want to try sum number 6 on your own? Yes. Very good. It's a similar sum, but a similar sum. It's a similar sum. Please try. Shh. Beta, it's a similar sum. I said, please try. Beta, you want me to do question 6? Can you trying it? सर प्लीज डू इट. हमसे नहीं हो रहा है, हमसे हो ही नहीं रहा है सर. जब भी एलसीएम की बातें आती है ना, द मैथ्स बिकम्स अरबिक. But what is the function given to us? What's the function given to us? F of x क्या दिया है? 2 upon 3x minus 4. It is 2 divided by 3x minus 4. So limit h tends to 0, f dash x is equal to f x plus h minus f of x upon h. Now beta, f of x, what is given to us? 2 upon 3x minus 4. So f x plus h क्या आएगा? 2 3x plus h minus 4. So this will be 2 3x plus 3h minus 4. अरे बोलो ना यार, ऐसा आएगा. So now let's put these values over here and let's try to simplify. 3x plus 3h minus 4 minus 2 किधर है सर? 2 किधर गया? 2 divided by 3x plus 3h minus 4 minus 2 upon 3x minus 4, the whole upon h. So can I say again our Bahubali is working? 1 2 3. So beta, 2 into 3x minus 4, 2 into 3x plus 3h minus 4, the whole upon 3x plus 3h minus 4 into 3x minus 4, and the entire thing is divided by h. This is divided by this and the whole is divided by. So ये दोनों नीचे आ जाएंगे और ये ऊपर इनको मल्टीप्लाई करते हैं अपने. चलो क्या आएगा? 6x minus 8 minus 6x plus 6h minus 8 divided by h. 3x plus 3h minus 4 and 3x minus 4. बेटा हाँ के ना? Now this minus का साइन अब हम अंदर लेके जाएंगे. 6x minus 8 minus 6x minus 6h plus 8 upon h. 3x plus 3h minus 4
3x माइनस 4। सो बेटा तलवारें निकालो और कुछ कट होगा। 6 से 6x कट, 8 कट। बसा क्या बसा? क्या मैं से एच भी कट कर दूं? बहुत बढ़िया। तो बच्चा क्या -6 अपॉन 3x प्लस 3h माइनस 4 एंड 3x माइनस 4। अब बेटा इसके आगे कुछ ना कर सके अपने। h की वैल्यू क्या है? h की वैल्यू लिमिट h टेंड्स टू, तो 6 डिवाइड बाय 3x प्लस 3 into 0 minus 4 and then 3x minus 4. But 3 into 0 is 0. तो 6, 3x minus 4, 3x minus 4. बेटा 2 बार है तो क्या हो जाएगा? 3x minus 4 the whole square. तो मैं लिख रहा था ना, मैं लिख रहा था। करने भी नहीं देते तुम सब यार मेरे को। समझ में आया? अच्छा कितनों का हो गया था? चलो झूठी तारीफें। हाँ झूठी तारीफें। इधर वेस्ट इंडीज आज कमाल खेल रहा है बेटा। T20 तुम आज जीतोगे। इंडिया वाले आज एकदम लबाड़ हो गए हैं। शिखर धवन इंजर्ड हो गए हैं बेटा। दिस इज आई विल गेट द आंसर, फाइनल आंसर। बेटा 7th वाला ट्राई करो। चलो खुद से 7th वाला। बेटा आई ट्रस्ट यू, तुम्हारा आंसर आएगा। बेटा आई वांट यू टू ट्राई द 7th वन। बेटा वेस्ट इंडीज जैसा मैं ये साइड बोल रहा हूँ, स्मिथ ने इतना सीरियसली ले लिया है। उसने कायरन पोलार्ड जैसी हेयर स्टाइल, बियर्ड, सब कायरन पोलार्ड जैसा कर दिया। वेस्ट इंडीज का कैप्टन है बेटा ये अपना। आई एम नॉट जोकिंग। तुम आज जब मैच देखो तब देख लेना। एक साइड कायरन पोलार्ड का पिक्चर हो, एक बाजू स्मिथ को रिप्रेजेंट करना। देखो एक जैसा ही लगेगा। बेटा वो 6 और 4 हिट करता है, वो पेपर में उतने लेके आते हैं 6 4। काजड़ उभो रही ने बेटा फोटो पढ़ाई ले जाए चिंता न कर। એવું કે છે કાયરન પોલાર્ડ in our class. But anybody getting the answer for the 7th one? सोहेल भाई 0। बेटा कितने लोगों का 0 आ रहा है? 0। अब देखो मेरे को 100% पता है तुमने जो कैलकुलेट जैसे करा है ना वैसा आंसर तुम्हारा गलत है, आएगा 0। लेकिन तुमने जैसे सॉल्यूशन किया वो सॉल्यूशन रॉन्ग है, वो मैं बिना देखे बोल सकता हूँ। कैसे? मैं बोलता हूँ ना। बेटा व्हाट इज माय फंक्शन ऑफ x given to us in the sum? My function of x is equal to 10 given to us. बेटा बात नहीं प्लीज। Function of x is 10, right? No. F dash x के लिए what's the formula? f x plus h minus f of x. Now tell me, f of x अगर 10 है, so tell me what will be f x plus h? कितना आएगा? वेरी गुड, मेरे को पता था तुम यही जवाब दोगे। आंसर 10 ही आएगा। कैसे 10 आ रहा है? इधर समझो, तुमको ये कंसेप्ट समझाने के लिए आई डेलिबरेटली डिडंट रब दिस थिंग। इधर ध्यान दो, प्रीवियस वाले सम में क्या था? f of x 2 डिवाइड बाय 3x माइनस। अब देखो 2 के आजू बाजू x कहीं था तो देखो ना x प्लस h में 2 एज इट इज रहा।
અને જેની જોડે x હતો ત્યાં મેં x plus h કર્યું. यहाँ 10 के साथ x ही नहीं है तो मैं x plus h कैसे लिख सकता हूँ? तो 10 ही आएगा ना. जैसे यहाँ 2 अकेला था तो नीचे भी 2 अकेला ही है. उसके साथ x नहीं था तो I did not write here. ऐसा मैंने यहाँ लिखा 2 plus h है, लिखा ऐसा. तो नीचे कैसे लिख सकते हैं? अब तुमने क्या करा, यहाँ पर 10 plus h ले लिया અને પછી સર લિમિટ h ટેન્ડ ટુ 0 હતું અને તમે આન્સર લઈ આયા જે બિલકુલ રોંગ છે ભાઈ. આવી રીતે આવશે 10. So 10 minus 10 upon h. So ultimately the answer will be 0. 10 plus h करके ले आया मैं सर. 10 plus h. बेटा तुम 10 plus h करके आंसर लेके आओगे ना तो आंसर 1 आना चाहिए, 0 ना आवे. h डिवाइड बाय h तो सर मैंने 0 upon 0 कर दिया. बेटा h डिवाइड बाय h is 1. So that clearly indicates कि तुमने ये जो किया है वो गलत है. अरे हाँ के ना. अब ओए पेज नंबर 173 पर ही जरा देखो. 173 पर एक्सरसाइज 5.1 के नीचे some standard derivatives they have given. Do you see that? Some standard derivatives मिला. So नोटबुक में वो पहला डेरिवेटिव लिखो. If y is equal to x raised to n, if y is equal to क्या लिखा है, x raised to n, तो मेरे को उसका डेरिवेटिव मिलेगा कैसे? फॉर्मूला देखो, कुछ अपना जाना पहचाना लग रहा है. सर फॉर्मूला खाली जाना पहचाना कुछ नहीं है. इट इज x रेज टू n अगर है तो इसका डेरिवेटिव अगर मुझे ढूंढना है dy अपॉन dx, तो आंसर देखो क्या है, nx n minus 1. ऐसा कुछ आंसर है देखो तो. बड़ा यू हैव सीन समवेयर बिफोर. कुडे ना वाला फॉर्मूला ये है, खाली ना के बदले nx हो गया है. आर यू गेटिंग इट? नाउ हाउ टू यूज दिस फॉर्मूला. अभी समझो, हमारे को सम में, अपने को सम में 2-3 तरह से हम डेरिवेटिव ढूंढ के ला सकते हैं. पहला मेथड था डेफिनेशन मेथड से हम आंसर लेके आ सकें. लेकिन डेफिनेशन मेथड बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. जब फिगर्स, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जब एक साथ आ जाएगा तब अपने लिए डेफिनेशन मेथड इज डिफिकल्ट. हमको उसको नहीं जाने का यूज करने के लिए देयर आर सम रूल्स. वर्किंग डेरिवेटिव्स हमको ऑलरेडी दे के रखे हैं, हम वो यूज करेंगे. ठीक है. और उसमें से सबसे पहला ये कौन सा है, स्टैंडर्ड डेरिवेटिव. इफ y इज इक्वल टू व्हाट, x रेज टू, तो उसका डेरिवेटिव कैसे मिलेगा, nx n minus 1. जैसे if x is raised to 5, तो कहना से x raised to 5 है तो इसका डेरिवेटिव कैसे मिलेगा, इसका डेरिवेटिव कैसे मिलेगा, 5x raised to 4. देखो x raised to n, x raised to 5, तो 5x raised to 4 that will be my सीधा आंसर. कोई डेफिनेशन मेथड नहीं लगाने की, कुछ नहीं, सीधा आंसर. बराबर से. अगर x raised to 10 होय तो 10x raised to, पक्का. फिर 6x क्यूब होय तो 6x क्यूब होय तो 6x क्यूब 18 कैसे आए, 18x स्क्वायर कैसे, 3 into 6 that will be 18. देखो ना, n into x, so it will be 3 into 6 18, and then it is x minus n minus, तो 3 minus 1 that will be 2. तो आंसर आया मेरा 18x. बड़ा ये पता चल रहा है नहीं, पक्का. If my answer is 8x raised to 4, कितना आ रहा है,
32x क्यूब अच्छा it is 32x पक्का पची if my answer is 7x square कितना आएगा पक्का if my answer is 15x 15 आएगा कितने जन बोलते 15 आएगा बेटा देखो ना this is 15x raised to 1 it is 15x raised to 1 so 1 into 15 is 15 बची x raised to 1 minus 1 1 minus 1 is 0 तो x निकल जाएगा तो आंसर खाली क्या आएगा आंसर खाली क्या आएगा बेटा बहुत ध्यान से अब इसका जवाब मेरे को दो 20 क्यों 0 क्यों 0 कैसे there is no x given to us तो सेकेंड डेरिवेटिव देखो उसी पेज पर लिखा है सेकेंड डेरिवेटिव if y is equal to k मिला and k is what कमल के कांस्टेंट तो देखो डेरिवेटिव हमेशा क्या आएगा देखो है ऐसा रूल दिया है देखो तो जरा if y is equal to some constant बेटा just 5 minutes back अभी हमने एक सम करा fx is equal to 10 ऊपर ही जरा देखो ना fx is equal to 10 so उसका डेरिवेटिव का आंसर हम क्या लेके आए थे 0 because it's a constant तो उसका डेरिवेटिव हमेशा क्या आएगा 0 बेटा इतनी वैरायटी जो नहीं मैंने पता चली तुमको अब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दे रहा हूं जरा आंसर देना जरा ये कॉम्प्लिकेटेड है जरा आंसर देना 6x raised to minus 3 raise your hand 6x raised to minus 3 देव minus 18x raised to कितने जन बोलते ऐसा आएगा minus 18 raised to x raised to minus 4 बड़ा minus 4 क्यों बड़ा यहाँ पर देखो एक जब पॉजिटिव नंबर था तो एक माइनस करा तो 2 आता है ये ऑलरेडी नेगेटिव है सो नेगेटिव में एक और नेगेटिव हो तो वो तो सो minus 18x raised to क्या आएगा अब देखो एक चीज मैंने तुमको सिखाई है माइनस नहीं चाहिए तो मेरा आंसर इट विल बी 18 डिवाइड बाय x raised to 4 पता चल रहा है बेटा मैथ्स को अलग अलग तरीके से लिखने के तरीके मैथ्स को अलग अलग तरीके के लिखने के तरीके बेटा यहाँ ध्यान 7x raised to minus 4 हो तो माइनस श्योर अरे पहले बची डिवीजन में जतो रहसे इट्स माइनस 28 अपॉन x raised to अब ये नहीं आएगा ऑफ कोर्स आएगा तुम क्या बोलते हो ऑफ कोर्स आएगा माइनस ही है अभी एक और 6x raised to 1/3 सर क्या रहा है 6x raised to 1/3 raise your hand don't give me answer like this please solve and raise your hand Bhakti 2x raised to minus 2/3 2x raised to minus 2/3 she says it's 2x सर 2x कैसे आएगा क्या से फॉर्मूला जरा देखो n into x है तो 6 into 1/3 तो that will be 2x अरे 1/3 minus 1 so it's minus 2/3 लेकिन अपने को माइनस तो नहीं चाहिए so 2 upon x raised to 2/3 बेटा the last one for today लिखो बुक में लिखो सारे the last one for today ये सब तुम लिख रहे थे जरूरत भी नहीं खाली प्रैक्टिस है अपने को
कल इसमें इतने सारे सम करने की तुमको जरूरत नहीं है, खाली समझना इंपॉर्टेंट है कैसे आंसर आ रहा है, और वो समझ में आ रहा है। ये वाला इसलिए लिखवा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखो 5x raised to half, 5x raised to half, ट्राई करो। 5x raised to half, हाँ सर, हाँ मैं लिख रहा हूं, पहले बोर्ड पे मैं लिख रहा हूं 5x raised to half, ऐसा मैंने दिया है। So this will be 2.5 x raised to minus half, 2.5 x raised to minus half को करने के लिए ऐसा कर दिया। कितने लोगों ने ऐसा लिखा है आंसर? 2.5 डिवाइड बाय x raised to half। कितने लोगों ने ऐसा आंसर लिखा है? क्या कह रहे हैं? ये 5 कहां गया वो पूछ रहे हो? 5/2 लिखा है। अरे यार परचूरन, बेटा कितने लोगों ने ऐसा आंसर लिखा है? शाबाश, द आंसर इज रॉन्ग। सर क्या गलती है? जरा यहाँ ध्यान, यहाँ ध्यान। द करेक्ट आंसर इज 2.5 root x, yeah, it was 2.5 root x। बेटा हमने अभी तक सम में जब रूट होता था तब हम हाफ ले लेते थे, तो अभी जब अगर हाफ आया है तो बेटा उसको रूट वापस दे दो ना। If you are getting that root again, so you have to give it back to them. So this was important. अब ये वाले सम में, ये वाले चैप्टर में बस ऐसा ही कुछ होता रहेगा अपने साथ। मैं रूट से हाफ कर दूंगा, हाफ से रूट कर दूंगा, और तुम लोग हैं करोगे बस। होमवर्क मार्क करेंगे। इलस्ट्रेशन 1 2 3 4 5 6, illustration 1 2 3 4 5 6, page 90 197, section D, sum number 2, sum number 3। पोलार्ड बंद कर दे बेटा।